Hello everyone. Now we study a conceptual question based on electrostatics. देखिए according to this question, two equal positive point charges are separated by distance 2a. Distance, okay. The distance of a point from the center of line joining two charges on the equatorial line perpendicular bisector, at which force experienced by a test charge Q naught becomes maximum. So charge on force Q naught maximum, this condition by root x, आपको x का वैल्यू फाइंड करना. In simple way, two identical positive point charges are separated by distance 2a. Another point on equatorial line at a distance where test charge Q naught. Total force on test charge Q naught, electrostatic force on test charge Q naught is maximum. A upon root x determine the value of x. तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इधर देखिए. 2 point charges Q and Q are separated by distance on equatorial line, means midpoint of bisector. Midpoint, O is a midpoint, so this distance OA and OB is equal to small a. Your steady point P, test charge Q naught, ये आपने कर दिया. R. So net force, electrostatic force on charge Q naught, test charge due to both charges is maximum. A upon root x determine the value of x. So net force on Q naught, the force on Q naught due to Q, like charge repel each other, F1. Due to another Q, like charge, repel each other, F2. तो आप देखिए बेटा, फ्रॉम ट्राइंगल OAP एंड OBP, AP इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू B, F1 KQ नॉट AP स्क्वायर, KQ नॉट AP स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा बेटा. वैल्यू किसका होगा, F2 का. तो फ्रॉम डायग्राम F1 and F2 both having same magnitude but different direction, so their resultant we obtained rectangular component when two vector quantities having same magnitude different direction. तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. तो ट्राइंगल OAP एंड OBP, OA इक्वल टू OB, OP कॉमन साइड, by use of Pythagoras theorem AP equal to BP. Both triangles are similar triangles. OA in front angle of side OA थीटा अज्यूम किया आपने, OA इक्वल टू OB, तो ये एंगल भी थीटा होगा बेटा. और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट दोनों के मिड में से पास होगा, तो थीटा वर्टिकल एंगल थीटा, थीटा वर्टिकल एंगल थीटा. ओके, तो कंपोनेंट्स of F1 F2, F1 cos of theta and F2 cos of theta, F1 sin theta, F2 sin theta. तो देखिए बेटा, F1 sin theta and F2 sin theta both having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other, means their resultant will be 0. F1 cos theta, F2 cos theta both are in same direction. When two or more than two physical quantities or vector quantities are same direction, then their resultant always equal to the algebraic sum of individual quantities. So net force F equal to F1 cos theta plus F2 cos theta. F1 and F2 both having same magnitude, to replace by F1 twice of F1 cos theta. तो देखिए बेटा, F1 KQ Q naught अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा की बात करें आप, देखिए cos थीटा बेस क्या हुआ आपका OP,
हाइपोटेन्यूज क्या हुआ बेटा, एपी। ओके, तो ओपी आर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट मीन्स होल पावर 1/2, दैट्स क्लियर। तो रिजल्टेंट फोर्स ट्वाइस ऑफ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1 होल पावर 1/2 होल पावर 3/2, दैट्स क्लियर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी मैं पहले भी आपको क्लास में बता चुका हूं। देखिए बेटा, व्हेन अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx इक्वल टू आफ्टर डिफरेंशिएशन एफ एक्स वी गेट अ न्यू फंक्शन एफ डैश एक्स 0 फ्रॉम क्वेश्चन electrostatic force depends on r op distance at a point on equatorial line means bisector line. OP is a variable quantity. So from basic theory, x here small r behave as a x, y behave as a f, behave as a y. So y is equal to fx. So differentiation of force with respect to small r. So for maximum force, f upon dr is equal to 0. For maximum force, that's clear. तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस ऑफ के स्मॉल क्यू कैपिटल सॉरी ट्वाइस ऑफ के क्यू क्यू नॉट कांस्टेंट अप्लाई द u अपॉन v डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू r। तो डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू r 1 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा बेटा माइनस q एज इट इज मींस r एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो पावर इन मल्टीप्लिकेशन 3/2 1 पावर रिड्यूस करेंगे 3/2 माइनस 1 तो क्या हुआ बेटा 1/2। क्लियर, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर 2r डिफरेंशिएशन ऑफ ए 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ट्वाइस ऑफ के क्यू क्यू नॉट कहाँ इमर्ज हो जाएगा बेटा, 0 में चला जाएगा। ये तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए आप, होल पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 कॉमन लीजिए। यहाँ क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस अपॉन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो बाई 2 कैंसिल होगा, क्यूब ट्वाइस ऑफ के क्यू क्यू नॉट 0 में इमर्ज होगा, बाई यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी 0 में चला जाएगा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 हम बेटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हुआ देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा 3r माइनस 3r माइनस r इक्वल टू r एंड ये r और है बेटा, देखिए r मिस कर दिया था हमने, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3r स्क्वायर r स्क्वायर, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर आर स्क्वायर देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिल्कुल ठीक है बेटा, पर मैं रिवर्स चेक कर रहा था कहीं कुछ कैलकुलेशन
तो नहीं होगी। आर स्क्वायर को राइट में ले लें हम, स्क्वायर आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बाई √2। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, बाई √x, आपका क्या है a बाई √2, कंपेयर बिटवीन देम, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2, हाँ √x में x इक्वल टू, दैट्स क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू।